सर आपने कहा था कि मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था, बोला रुक जा। डाउट्स करवाओगे। सॉरी सर। आज आपको भेजा था ना। कौन सा डाउट है तुम्हारा, बताओ। सर मैंने आपको वो भेज दिया है, 3 क्वेश्चन के मैंने ग्रुप पे भेज दिया वो। बोलो बोलो मुंह से। सर एक मिनट ओपन करने दो उसे। ओके ठीक है यार, आज मेरा प्लान यही रहेगा, टेंस करा था। हाँ इसमें सर श्रेयस सर मेरे को भी डाउट हो गया। सर पहला होल्ड, श्रेयस होल्ड। सर ये आपको देखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, आपको देखना पड़ेगा। कौन से ग्रुप में? सर इसके 3 क्वेश्चन 30 मिनट ले लेंगे। एक्सक्यूज मी सर आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में समझा सकते हो सर एक बार? और बता दो यार रिवीजन ग्रुप पे 7th रिवीजन वाले पे। अच्छा इसकी बात कर रहे हो, तो इसकी इमरजेंसी क्या है? नहीं कराएंगे इसको आज, इसमें टाइम लगेगा। नहीं आज नहीं करा रहा मैं इसको करा लेंगे इसको, कोई बात नहीं। दोबारा से पोस्ट कर देना, तो मेरे को क्लास के बाद में कर दूं, कल करा दूं, आज नहीं। ओके राइट। या श्रेयस डाउट? आप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बीच में सर हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा बता तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं चैट बॉक्स में मैसेज भी डाल रहा हूँ, तुम्हें बता भी रहा हूँ। इस चैट बॉक्स को तुम व्हाट्सएप में पढ़ भी लेना, ठीक है किरेश मनोज? यस सर। Heat travels from one place to another in 3 forms primarily. These 3 forms are radiation, conduction, and convection. When heat travels from one place to another by way of radiation, it does not need any medium. It travels in vacuum. For example, the heat coming to us from sun is through radiation. The second way in which heat travels is called conduction. Primarily, conduction takes place in solids. सर पिछले वाला in solids, when a molecule gets heated up, it starts hitting its neighbor or padosi and starts heating that padosi also. When that padosi gets heated up, he hits the other padosi, and likewise the heat travels from one molecule to another molecule. In this, the molecule does not move from one place to another. They just transfer the heat by beating their padosi neighbor molecule, and this how in solids the heat is transferred from one place to another. For example, when you start heating one end of a rod on a burner, the molecule which is getting heated up starts beating its neighbor, and that next neighbor, and slowly heat reaches your hands. Then you will drop the rod and say, "Mama, मेरा हाथ जल गया." सर हो गया? The last way by which heat travels from one place to another is convection. The third way in which heat travels from one place to another is called convection. Convection occurs in fluids, that is, liquid and gases. In convection, a heated molecule moves from one place to another, and the place which is vacated by that heated molecule is taken up by another molecule, which is a colder molecule. So in this way, there is a cycle going on. सर हम इससे रख सकते हैं सर कंडक्शन, सॉलिड convection. Wait. So in convection, when you heat up the lower part of the pot, either it is gas or liquid, the heated molecule will move up and its place will be taken by a lower molecule. This is the same way that the wind is created when the air next to the earth gets heated up and starts rising, and the place of that heated molecule is taken by a colder molecule. So there is a cycle of movement of the molecules in convection.
So we can say that convection molecules move, conduction molecules don't move, and in radiation there are no molecules. So there is no question of movement. Yes, sir. Sir, in conduction, molecules move. In convection, no molecules move, and in radiation, there is no molecule only. सर हाँ जी, सर इसे ग्रुप में भेज दो। क्या कह रहा? मैं भेज सर देता इसे हूँ ना। ग्रुप में भेज दो, मैंने पूरा कॉपी करके रख रखा है। कौन सा वाला? सर मीट। नहीं मैं डाल दिया ग्रुप में ऑलरेडी। हाँ मैंने पूरा अच्छे से कर रखा था। तू डाल दे, तू भी डाल दे, कोई बात नहीं, वो तो डबल हो जाए, कोई नहीं, डाल दे। सर गुड। आप जो बीच बीच में रुक रहे थे ऐसे लग रहा था कि मंत्र बोल रहे हो, एक लाइन पे स्वाहा, फिर उसके बाद सही बात है, मुझे भी ऐसी फीलिंग है। अच्छा मुझे भी ऐसी फीलिंग आई, थोड़ी मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं आपकी ठक ठक के साथ ठक ठक कर रही थी। ऑलराइट, चलो गाइस अपन शुरू करते हैं। अभी आज टेंसेस बहुत आसान है यार। टेंसेस मैंने पहले ही पढ़ाया पर शायद से वीडियो नहीं बन पाया उस वक्त, तो मेरे को ज्यादा इंटरप्शन मत करना। लेट अस जस्ट फिनिश दिस टेंसेस टुडे एंड देन आई विल गिव यू प्रैक्टिस। ठीक है सर। राइट गाइस, सो टुडे आवर मेन टास्क इज दिस इज क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर। जस्ट मेरे को, अरे वीर जेटली। Yes, sir. हाँ, what I'm saying is, have you attended my last class on English grammar? थोड़ी सी ब्लर आ रही है। What, sir? Have you attended my last class on tenses, English grammar? Last class में आप थे? सर पिछली क्लास में? हाँ, हमने पहले कर चुके हैं हम लोग ये। हाँ था सर मैं। हाँ, नहीं इसमें टेंसेस किए थे हमने। क्यों भाई ब्लर आ रही है क्या फोटो? सर सभी आ सर रही है। बिल्कुल हल्की सी समझ आ रही है। बहुत थोड़ी सी सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ओके, मेरे को याद दिला दिया ना तूने। हो सकता है सेटिंग में जाके मेरे को चेंज करना पड़े। एक मिनट होल्ड करो। वीडियो सेटिंग्स, मेरे उसमें नहीं आ रहा है एग्जाम में। हाई डेफिनेशन। कौन बोल रहा है? राघव कसाना। राघव कसाना, तुम्हारी शादी हो रही है क्या इस टेस्ट के बाद, कि तुम्हें पढ़ने से कोई लेने देने नहीं? ये 8th में भी तो आएगा, 9th में भी आएगा। लाइफ में टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, स्कूल नहीं एक ना, मेरे को बात कर रहे थे राघव से। तुम जब डीयू में जाओगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कोई लड़की मिलेगी तो क्या बोलेगी? क्या नाम है तेरा? ऐसे बोलेगा? मैं आस्क योर नेम। वहां टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। जैसे अगर तू ऐसे बोलेगा क्या नाम है तेरा, चप्पल निकलेगी सीधी। आजकल लड़के चप्पल भी सैंडल वाले पहनते हो, शर्म बहुत जोर से लगती है। और अगर पूछेगा मे आई नो योर नेम, शी मे टेल, शी मे नॉट टेल, बट शी चप्पल नहीं मारी कम से कम। समझ गया ऋषित? राघव हाल अपने सर का खोपड़ी का ध्यान रख। हमारी सेफ्टी अपनी सबकी खुद की जिम्मेदारी होती है। हाँ ओके गाइस, टेंसेस। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस। सारे के सारे टेंसेस में सबसे पहली बात 4 टेंस सब टेंस जरूर होते हैं। विच इज फर्स्ट सब टेंस? फर्स्ट इज सिंपल। भैया सिंपल टेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक्शन और एक होता है स्टेट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, NEOUS। So present simple, present continuous, and then perfect. And fourth is perfect continuous. Perfect continuous. लेकिन इसको आगे चलाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। वो स्टोरी हम बहुत बार सुन चुके हैं। मेरे ख्याल से कुछ एक लोग होंगे जिन्होंने स्टोरी नहीं सुनी है। उसमें शायद से वीर जेटली का नाम आ सकता है। शिवांश देखना कोई ऐसा चैंपियन जो कि नहीं। राघव है, अनुभव है, मदिहा है, योग्या है। उमर शिफ्ट हो गया अभी। उमर अच्छा शिफ्ट नहीं, उमर है, सिद्धार्थ है। उमर का छोड़ दो, मैं उमर को नहीं कॉल करने वाला। उमर है। ओके छोड़ दो, छोड़ो। ओके गाइस, नाउ लिसन टू मी प्लीज। ये कहानी कुछ सब लोगों ने सुनी हुई है, कुछ लोगों ने नहीं सुनी है, उनको मैं सुना रहा हूं। और ये कहानी शाहरुख खान की कहानी है। ओके दोस्तों, हमारे पास जो प्रोनाउन होते हैं कॉर्नर में जाता है वो वाली ना सर। हाँ वो वाली।
प्रोनाउन। ओके, देखना ध्यान से, मेरी बात सुनना। सर अगर नोट्स बनाने हैं तो ये प्रोनाउन भी लिखना है? हाँ, लिखना है, नोट्स में बनाने और लिखना है। सुनो दोस्तों, प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 लोग आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। वीर तुम ध्यान से सुनना, है तुमने सुनी नहीं है पहले स्टोरी है। वीर, ओके सर। सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी। तो फर्स्ट पर्सन होता कौन है? स्पीकर, जो बात कर रहा है, जो कह रहा है आई विल ब्रेक योर टीथ, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। तो आई वो फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है जो लिसनर होता है, जिसकी बात सुन रहा है। हाँ जी, हमें नोट्स में ये प्रोनाउंस भी लिखना है क्या? हाँ जी, लिखना है भाई, लिखना है, लिखना है, लिखना है, बोला था। हाँ, लिखना है, लिखना है। लिसनर होता है सेकंड पर्सन, जो दूसरी बात सुन रहा है। एंड देन थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम गप्पे मार रहे हैं, ठीक है, जिसकी हम बुराई कर रहे हैं। तो पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है यहाँ पे, देखो यहां 2 चीजें होती हैं, यहां होता है ही और दे। वीर ध्यान देना, मदीहा ध्यान देना, सब लोग ध्यान दो। सोनाक्षी है क्लास में? सोनाक्षी, सोनाक्षी देर। देखो दोस्तों, यस सर। ये कॉमन पर्सन है, ये कॉमन पर्सन, ये आम आदमी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सब एक स्पेशल पर्सनालिटी जो है। आपका बोर्ड बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। तो एक काम कर, छोड़ के रिजॉइन कर, रिजॉइन। हल्का ब्लर है पर हाँ सर, समझने लायक है। हल्का सा ब्लर है पर हाँ सर, समझने लायक है सर, इतना भी ब्लर नहीं। मेरे को तो भाई ये लग रहा है कि सर आप ना थोड़ा सा बड़ा लिख दिया करो नोट्स में, फिर थोड़ी ठीक, बड़ा लिख रहा हूं, बड़ा। बस थोड़ा सा ब्लर है पर हाँ सर, समझने लायक है। आई यशस्वी आ गई? तो राघव आ गया। ओके, नाउ मेरे साइड से बहुत ब्रेक हो रही है। ओके, मैं आराम से बात करूंगा ना अभी, धीरे धीरे बात। सो कौन 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 स्पेशल है भाई? थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर। लेकिन कौन थर्ड पर्सन का सिंगुलर? ओनली सिंगुलर। इसके अलावा कई बार नाम भी आ जाते हैं, राम, सीता और गीता, कुछ भी नाम हो सकते हैं। ये लोग रेड कलर में लिखे हैं, ये स्पेशल लोग हैं, ये सेलिब्रिटी हैं, ये जब भी चलते हैं अपना सर्वेंट साथ में लेके चलते हैं। ये है शाहरुख खान पार्टी। अब तुम देखना, जब भी मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्शन में, देखो मैं लिखूंगा, एग्जाम्पल देखते हैं। वी स्पीक, यू स्पीक, आई स्पीक, सबके सब बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। लेकिन जैसे आएगा ना ही, आएगा स्पीक्स, ही स्पीक्स, इसके साथ ही चरू चेला चलता है, साथ में सर्वेंट चलता है इसके, है ना? तो थर्ड पर्सन जब भी आएगा उसकी वर्ब के अंदर एस लगेगा ही लगेगा। शाहरुख खान पार्टी, ऑलवेज एस एट एंड ऑफ वर्ब। हाँ भाई, सोनाक्षी समझ गई इस बात को? शाहरुख खान पार्टी की लास्ट में हमेशा लगेगी। यस सर। पार्टी के आखिर में सर एस लगेगा। हाँ, वीआईपी लोग हैं, अपना काम खुद नहीं करते, साथ में एक सर्वेंट चलता है इनके। तो राम सिंग्स, सीता सिंग्स, इट रेन्स, बट आई सिंग, यू सिंग, वी सिंग, दे सिंग, इसमें एस नहीं लगेगा। ओके, सो यहां से हमारी शुरुआत हो गई है। हम एक्शन वर्ब, तो सिंपल, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट सिंपल में, वो 2 तरह के हैं। एक में आती है एक्शन वर्ब और एक में आती है ऑक्सिलरी वर्ब। एक्शन वर्ब है, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या है। इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये तो मिनिमम होना ही चाहिए, और भी हो सकता है, बाकी भी हो सकता है, बट ये मिनिमम चाहिए। और वर्ब की कौन सी फॉर्म? ध्यान रखना, वर्ब की 3 फॉर्म में यूज करूंगा। V1 इज फर्स्ट फॉर्म,
V2 इज सेकंड फॉर्म, ये सिर्फ पास्ट सिंपल में यूज होती है और कहीं नहीं। एंड V3 इज थर्ड फॉर्म। ये लिख देता हूं कहां कहां यूज होती है, तुम लोगों को ना V3 का अच्छा। मतलब थर्ड वर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब V3। ठीक है, V3 का मतलब थर्ड फॉर्म। तो कहां कहां यूज होती है देखो, V3 अब यूज कहां होती है देखो, ये तो एवरीवेयर, एवरीवेयर। ये ओनली पास्ट सिंपल, ओनली पास्ट सिंपल। और थर्ड फॉर्म कहां यूज होगी दोस्तों, परफेक्ट। हर एक परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होगी थर्ड फॉर्म V3। एक और वर्ड में यूज करता हूं VING, विंग, VING, ये कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। कॉन्टिन्यूअस, हमेशा VING कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा, ध्यान रखना जब नोट्स बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल श्रेयस, फॉर एग्जाम्पल, हाँ यार क्या करूं, थोड़ा ठीक सर मैम मेरे नहीं को सही था। बताते मेरे को याद दिलाते रहना, याद दिलाते रहना, मैं कर दूंगा। यहाँ लिख देता हूँ ना, VING स्पेशल, VING, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, ओके। नाउ एग्जाम्पल, श्रेयस इज बेदिंग in a shower without any clothes. This is a example of continuous present सर आप मेरी continuous। बेइज्जती कर रहे हो सर, देखो सर मेरे Perfect को continuous। अरे बेइज्जती क्या है यार, इसमें बाथरूम में तो साले तुम कपड़े पहनो ना पहनो क्या फर्क पड़ता है। ऑलराइट, उसके बाद आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो सर। पास्ट टेंस, अरे अच्छा भाई। ठीक है, पास्ट सर टेंस, कल जो समझाया था आपने वो पास्ट समझाया। पास्ट टेंस कंटिन्यूअस, अगेन ING आएगा। सर श्रेयस इज ईटिंग छोला भटूरास विद अमिताभ बच्चन। अगेन ईटिंग, ING। OMG। श्रेयस, ओके, अनुभव विल बी डांसिंग विद, किसके साथ डांस करेगा भाई, विद हिज फ्रेंड्स। मंकी। वाह सर ट्रेवर फिलिप्स, सर ट्रेवर फिलिप्स। ये था सर। सर अनुभव will dance with Trevor Phillips. ओके, अरे भाई, अरे Sir रुको अनुभव will यार, dance with Michael D. Santos. क्वाइट, लिसन गाइस, नहीं, ओके। सो सब्जेक्ट एंड वर्ब, एग्जांपल क्या आएगा इसका, एग्जांपल इसका आएगा, एग्जांपल, सिया सिंग्स वेल, ऐसा मतलब, बस ये दोनों तो आने ही चाहिए, ये जरूरी है। ना नेक्स्ट कम स्टेट। स्टेट में किस तरह के एक्शन आते हैं, जिसके अंदर आपकी हैबिट है या कुछ तो है स्टेट, हैबिट, ठीक है। सो स्टेट और हैबिट, नहीं सॉरी, हैबिट तो स्टेट, ओनली स्टेट। एक्शन में एक्शन और हैबिट दोनों आती हैं। हैबिट भी छोटा बन गया, बड़ा बनाएगी। हैबिट, he eats 5 bananas every day, example। Siddharth drinks 3 liters of milk every morning। ये ड्रिंक्स, ओके। सो नाउ नेक्स्ट स्टेट है, स्टेट में क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी, ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब होती कौन कौन सी है दोस्तों, सबको पता है, इज, आर, एम, इज, आर, एम। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है, ये क्या फिर चिप्स खा रही है क्या, नहीं सर मैं चिप्स नहीं खा रही हूँ। सब्जेक्ट ऐसे प्लस जैसे जूस पी रही है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस, अच्छा एक बात हो गया, हम भी Yes, कोई इतने sir. गरीब नहीं है, हम भी कोई इतने गरीब लोग नहीं अरे है, sir. हम भी खाते पीते, ऐसी बात नहीं, मतलब हम शो ऑफ नहीं अरे करते, वो अलग बात है, हम सर पहले ही खा मैं लेते। हाँ, मैं ना अदरवाइज मैं हम भी कुछ वेल और टू डू कर है, रही हूँ। मतलब ओके। अरे सर मैं कुछ और कर रही हूँ। मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, म्यूट कर लेते पढ़ाई पे ध्यान दे। सर मैं ओके, खा रही हूँ। ओके तो सर। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी खाने- वर्ब
ओए ओए प्लस एडजेक्टिव। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो आयुष, एग्जाम्पल क्या आएगा, सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। आई एम सैड, नहीं सैड क्यों, मैं सैड क्यों बोलूं, आई एम स्मार्ट हैप्पी। और हैप्पी, जो भी Sir, एडजेक्टिव। I am not feeling well. हाँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा यार, फिर वही वाली बात हो जाएगी, श्रेयस इज टेकिंग बाथ इन द शावर विदाउट फूड, वो वाली बात हो जाएगी, वो कॉन्टिन्यूस है। नॉट फीलिंग वेल मतलब कॉन्टिन्यूस। ओके, देख अब जानबूझ के मुझे बार बार वहां लेके जा रहा, फिर मेरे को बोलेगा कि सर बेइज्जती कर रहे हो आप मेरी, तो मेरे को बार बार वहां लेके जा रहा। हाँ Sir, I am dumb. Example. ना ना, हाँ ये नहीं, बट यू आर स्मार्ट। Smart का dumb तो कर. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे आपका, यू आर स्मार्ट। We are ओके smart. दोस्तों, तो ये तो हमारा सेकंड टाइप का सिस हो गया। अरे वीर जेटली अंडरस्टूड भाई, दोनों के दोनों, ये टाइप और ये टाइप, टू टाइप्स। ऑलराइट, कॉन्टिन्यूअस तो इतना आसान है ना, इट कैन बी टॉट टू मंकीज आल्सो। तो कॉन्टिन्यूअस क्या है? सर आप एक बार सर मंकी तो इंटेलिजेंट होते हैं, सब्जेक्ट, गधे बोलो ना। ओए सब्जेक्ट प्लस वीआईएनजी विंग प्लस, यार गधे की इतनी बेइज्जती करी लोगों ने, गधे से ज्यादा यूजफुल एनिमल नहीं है, जितना लोड गधा उठाता है ना, ह्यूमन काइंड की कितनी जितनी उसने सेवा करी है, वी पीपल आर नॉट गिविंग ड्यू रेस्पेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वीआईएनजी प्लस एक्शन वर्ब, वर्ब यहाँ पे मैंने लिखनी थी एक्शन वर्ब, वर्ब एक्शन वाली वर्ब लगेगी भाई, देखो ध्यान रखना, एक्शन वर्ब। ओके, एन एक्शन वर्ब, तो नहीं सॉरी सब्जेक्ट, अरे यार मैं कर क्या रहा हूं आज, दोस्तों एक मिनट होल्ड करना प्लीज, प्लीज बियर विद मी। सो दिस इज सब्जेक्ट प्लस V1, subject plus V1, only this much, subject plus V1। यहाँ अच्छा, इस वाले में कोई भी वर्ब एक्शन वर्ब नहीं है, नॉर्मल वर्ब आती है, आई एम स्मार्ट, यू आर स्मार्ट। यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है दोस्तों, इज, मार, एम प्लस VING, वर्ब के साथ ING। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें No, क्या है, auxiliary verbs वो होते हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा होता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मैं शायद आपको आज नोट्स ना भेज पाऊँ क्योंकि कल मेरा संस्कृत का टेस्ट है। ठीक है। सो सिद्धार्थ, Sir, मेरा सर साइंस का टेस्ट. सिद्धार्थ नहीं, लेकिन नोट्स कल चाहिए मेरे को, नोट चाहिए जरूर, आज नहीं तो कल। सिद्धार्थ इज, देखो मैं बना रहा हूँ कॉन्टिन्यूस, सिद्धार्थ इज मेकिंग, अब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, सिद्धार्थ ऑक्सिलरी वर्ब होगी, एंड ING आ गया वर्ब ING, उसके बाद कुछ भी लग सकता है। सिद्धार्थ इज मेकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है भैया, सिद्धार्थ इज मेकिंग एक्सक्यूजेस, ये कॉन्टिन्यूस है। अब देखते हैं परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा। परफेक्ट टेंस ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। यार वीर जेटली, तुमने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं बार बार, ये क्योंकि एस आया इसके लास्ट में, ये शाहरुख खान के लिए इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा एस? क्या सर, फिर से पूछना। मैं बोल रहा हूं, इस ही शी इट क्या है, जो थर्ड पर्सन है, उनके साथ कौन सा वाला यूज करेंगे हम, हैज के हैव? हैज, बिकॉज इसके अंदर ऐसा आ रहा है, ये वीआईपी लोग यूज करते हैं इस लास्ट में। तो ही हैज, शी हैज, राम हैज, शाहरुख खान हैज, ठीक है, आलिया भट्ट हैज, व्हाटएवर जितने स्टार आ रहे हैं आजकल, चिरंजीवी सब, चिरंजीवी तो पुराना स्टार है। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस V3। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी इसका अच्छा मिलेगा आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। यशस्वी
हैज, क्योंकि यशस्वी सेलिब्रिटी है, वीआईपी है भाई, थर्ड पर्सन है, उसकी बात कर रहे हैं हम। यशस्वी हैज ईटन योग्य म्यूट करो। all the samosas। सर एक और एग्जांपल है सर, माइकल हैज अ ब्लैक हाँ, तो देखो क्या हुआ, क्या क्या आया, हैज आ गया, सब्जेक्ट आ गया यशस्वी, हैज आ गया, ईटन आया है V3, उसके बाद तो बाकी प्रेडिकेट जो भी आता रहे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक और एग्जांपल है सर, माइकल हैज ब्लैक टाइगर। माइकल हैज ब्लैक टाइगर, ब्लैक टाइगर सर सर, एक माइकल हैज अ एग्जांपल है। साइकिल। टैलिगर क्या होता है? वही मैं जादूगर? गाड़ी होती है सर, ब्लैक टाइगर गाड़ी है। सर नहीं, but सिंपल ये- माइकल ये- हैज अ अरे साइकिल। एक देखो, माइकल हैज ब्लैक काली गर्ल, क्या बोल रहे हैं, ब्लैक काली गर्ल क्या होता है? ब्लैक ब्लैक कार सर, ब्लैक कार। ब्लैक ब्लैक कार। ओ भाई, कार वर्ब थोड़ी है, हद कर रहा है यार, कार वर्ब है क्या? सर माइकल हैज अ साइकिल। सर बोलते हैं सर, गलत है, इट इज नॉट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में तो वर्ब आती है थर्ड फॉर्म। तो माइकल हैज थ्रोन आउट ऑल हिज क्लोथ्स फ्रॉम द बालकनी, ये है माइकल परफेक्ट। हैज अ साइकिल। माइकल हैज थ्रोन, सेंटेंस ढूंढ के हाँ, लाते माइकल हैज थ्रोन आउट ऑल हिज क्लोथ्स फ्रॉम द बालकनी, ये है परफेक्ट। एंड नाउ ही इज टेकिंग बाथ इन द शावर विदाउट क्लोथ्स, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन है ये। श्रेष मनोज, ऑलराइट, ओके श्रेष, मेरी बात पे ध्यान दो जल्दी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी V3 नहीं आता। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या आता है? सब्जेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस करना प्लस हैज और हैव। वीर, यहां भी वही कहानी चलेगी। अगर वो SR के पार्टी, शाहरुख खान पार्टी के लोग हैं, ही शी इट, तो एस लगेगा, नहीं तो हैव लगेगा। हैव प्लस बीन प्लस VING। लेकिन यहाँ एक बात, बहुत बढ़िया बात आती है, यहाँ दो वर्ड आते हैं, एक का नाम आता है फॉर और एक होता है सिंस। फॉर कब आता है? अननोन बिगिनिंग, हमें टाइम नहीं पता कब शुरू हुआ ये, अननोन बिगिनिंग, इतना पता है 5 days 10 days बस। सिंस में क्या होता है? टाइम, बिगिनिंग पता होती है, बिगिनिंग नोन, बिगिनिंग नोन। फॉर एग्जाम्पल, तुम ताजमहल देखने चले जाओ और ताजमहल के तहखाने में जाओ उनकी लाश देखने के लिए गाइड के साथ, मुमताज और ताजमहल शाहजहां की, और वहां पे गाइड तो गायब हो जाए और तुम अकेले बैठे हो, और वो वहां पीछे से आवाज आए, आई हैव बीन डेड फॉर लास्ट 20 years। सर ये हमारी सर आप स्टोरी वही चली स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हो? हां सर वही सर उसमें मैंने भी आपने अंत में पहले तलवार सर पकड़ी सिंस थी। का एग्जांपल है सर, टाटा ग्रुप इज सिंस 1868। गलत है, रॉन्ग एग्जाम्पल। इज तो नहीं आता ना इसमें, इज तो सिंपल सेंटेंस में आएगा। सर उसमें तो बेसमेंट में मैंने तलवार पकड़ी थी, इसमें वहां से है, continue। हाँ, Yes, sir, राघव की वहां से कहानी बनी थी। continue करना। अच्छा सुनो गाइस, एक हाँ। प्लीज यार, अरे टेंस तो समझा दो पहले, टेंस समझा दो। तो तुम बोल रहे, तुम बैठे वहां, पीछे से स्टोरी आई, आई हैव बीन डेड फॉर 400 years। 4 क्यों बोला उसने? डेट नहीं बोल रहा वो। अगर वो बोलता आई हैव बीन डेड सिंस 1 July 1600, तब तो सिंस आएगा। वीर समझ आई मेरी बात? सोनाक्षी समझ आई? मदीहा, जब भी एक डेट एग्जैक्टली पता है अपने को। ओके, यहाँ पे श्रेष मनोज ने फिर गलत, श्रेष तो फंडामेंटल तो पकड़ता नहीं है, दूसरों को इंप्रेस करने में लगा रहता है। फंडामेंटल पकड़ना, ये गलत सेंटेंस बनाया तूने। दे आर सप्लाइंग पिज्जा सिंस 1924। ये पेडिस्ट्रियन अंग्रेजी, सुनो मेरी बात, ये बोला कौन लोग बोलते हैं ऐसी अंग्रेजी? पेडिस्ट्रियन इंग्लिश बोलते हैं उसको, पेडिस्ट्रियन। सड़क चलते, सड़क छाप अंग्रेजी होती है। सड़क छाप अंग्रेजी नहीं बोलनी अपने को, सड़क छाप नहीं बोलने का है। दे आर सप्लाइंग पिज्जा सिंस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस में कभी भी सिंस 4 नहीं आता। सिंस 4 हमेशा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दे हैव बीन सप्लाइंग पिज्जा सिंस 1924। श्रेष मनोज भाई, तुम बात को पकड़ो, गहराई को पकड़ो, हाल इस चीज पे ध्यान दो जो मैं सिखा रहा हूं। ओके, दूसरा, अच्छा तो पीछे से आवाज आई, आई हैव बीन डेड फॉर लास्ट 400 years। तो वही स्टोरी कंटिन्यू कर। तो तुमने जवाब दिया
and I have just wet my pants. ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है. I have just wet my pants. वेट की तो तीनों फॉर्म होती है, वेट वेट वेट. तो उसके पीछे से फिर एक दूसरी फीमेल वॉइस आई. You have always been making people wet. शाहजहां. तो have been आ गया, उसने टाइम तो नहीं दिया, बट उसने बोला you have always been making people wet. ओके, चलो कोई बात नहीं, स्टोरी को कभी आगे चालू करेंगे. तो अब मुझे बताओ, टेंसेस प्रेजेंट तो क्लियर हो गए अपने को, ठीक है. अभी मैं साथ ही साथ थोड़ा सा पास्ट का भी तुम्हें डेफिनेशन दे देता हूँ, ताकि यहीं पे हम क्लियर कर दे पास्ट. ओके, अब चला पास्ट की कहानी. फ्यूचर तो शायद नहीं हो पाएगा, फ्यूचर कल कर दूंगा. ओके दोस्तों, तो पास्ट के अंदर भी अगेन सिंपल, और सिंपल के अंदर दो हैं. सॉरी सर, वो श्रेयस ने एग्जांपल दिया है. मैंने नहीं दिया, श्रेयस ने दिया है चैट में. वो है, कोई बात नहीं, तो उसको छोड़ दे, तू इग्नोर कर दे. इधर देख, इग्नोर कर दे, इधर देख. ओके ओके गाइस, पास्ट सिंपल जैसे मैंने बोला एक्शन, और एक मैंने बोला था ओनली प्लेस वेयर द सेकंड फॉर्म कम्स इज पास्ट. ओनली पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म सिर्फ यहां आती है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2. एग्जाम्पल, अनुभव. सब बस नेगेटिव मत बोलना, आप कभी हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं. आज इको पॉजिटिव करता है, तू बोलेगा तो सर लिख देंगे. उल्टा नेगेटिव ही कर देंगे. अनुभव सौ दी क्या जना, अनुभव सॉ द घोस्ट. तो सॉ आ गया, यानी सब्जेक्ट प्लस V2. एक और एग्जाम्पल, सर थोड़ा बड़ा लिख दो प्लीज. नियति मिस्ड. नहीं, नियति को परेशान नहीं कर रहा मैं. नियति जो क्या म्यूट कर लो. मिस्ड द मूवी. तो ये आ गया, ठीक है. तो ये इस तरह का आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है. एक और ओके, दूसरा क्या होता है? दूसरा होगा सिर्फ नॉर्मल सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है दोस्तों इसके अंदर? वाज और वर. वाज तो SR के शाहरुख खान लोगों के लिए आएगा, और वर आम आदमी के लिए आएगा, प्लस एडजेक्टिव. सर आप थोड़ा छोटा लिख दो, सब्जेक्ट प्लस के बाद जो लिख रहा है समझ नहीं आ रहा. छोटा लिख दो. आप छोटा लिख रहे हो सर. अरे सर कोई अच्छा. अरे भाई लोग बड़ा लिखते हो, बोलते तुम छोटा लिखते हो. ऑक्सिलरी एंड वो वर्ब. कह रहा है कि अब ठीक है, ओए अब ठीक है, ओए. हाँ जी सर. ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है. तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा, अब थोड़ा सा मजे लेते हैं श्रेयांश के. हाँ सर. वाओ. तो श्रेयांश शास्त्र क्लास में was spitting on the road when the police caught him. Anyway, बाकी वो सेंटेंस छोड़ दे, तो पुलिस को पकड़ेगी. आजकल तो थूकना जो है कोरोना काल में ऑफेंस हो गया. ऑल राइट, नाउ गाइस वी कम टू सिंपल के बाद भी आ गए कॉन्टिन्यूअस पे. सर अनुभव मुझे क्वेश्चन है. आई विल यूज. अनुभव मुझे क्वेश्चन है, तो अनुभव को जाके बोल, मुझे क्यों बोल रहा है? ओके वेट करो, वेट अनुभव वेट कर. ओके नेक्स्ट मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से. कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर दोस्तों बहुत आसान है. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब. वहां एडजेक्टिव आता है, इधर वर्ब आता है, बस इतना फर्क है. ऑक्सिलरी वर्ब एंड VING. नहीं, मैंने क्या कर दिया, मैंने गड़बड़ कर दी. सॉरी सर गाइस, वो बातों में कंफ्यूजन मच गया. यहाँ तो एडजेक्टिव आना था. श्रेयस वाज गुड.
श्रेयांश। श्रेयांश। श्रेयांश वाज गुड, श्रेयांश वाज गुड, ठीक है। यश और श्रेयांश वाज स्मार्ट और व्हाटएवर कुछ भी आएगा। यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आयुष was, इस वर्ड का मतलब कोई बताएगा मेरे को जो मैंने लिखा बोर्ड पे? क्या है? यॉर्निंग। आवाज से लेना। सर थोड़ा सा लड़कियों के साथ भी कर लो, हम लड़कों के साथ ही कर लो। अभी गर्ल्स की बारी आ रही, गर्ल्स की बारी आ रही, गर्ल्स की बारी आ रही। आयुष वाज, हाँ आयुष वाज यॉर्निंग हो गया। ओके ओके, अब हम आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट शुरू करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों परफेक्ट का क्या है? परफेक्ट का सिंपल है, वही सब्जेक्ट प्लस हैड। इसके अंदर हैज हैव नहीं होता, हैड प्लस V3। ओके ओके, नाउ मदीहा की तारीफ करते थोड़ी सी। मदीहा, हाँ मदीहा हैड फिनिश्ड his lunch, her lunch, her lunch of her younger brother। सर ये तो ठीक। मदीहा हैड फिनिश्ड लंच ऑफ हर यंगर ब्रदर। अपना तो खाया ही खाया, भाई का भी खा गई। ओके, और लास्ट में आता है दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिमिलरली वही, बस यहाँ पे हैज हैव आ रहा था, यहाँ हैड बीन आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं। अच्छा, देखो जो लोग कहते हैं ना ही हैज बीन, लोग बहुत सारे बोलते हैं ही वॉज ईटिंग सिंस मॉर्निंग, वो रॉन्ग है, वो सड़क छाप अंग्रेजी है। श्रेयस मनोज दोबारा नहीं यूज करना उसको, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना सिंस और फोर के साथ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड, सब्जेक्ट प्लस है, बड़ा लिखता हूं, बड़ा लिखता, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन एंड VING, और साथ में आएगा फोर या फिर सिंस। फॉर एग्जाम्पल राघव हैड नॉट टेकन बाथ फॉर 5 days when his mother threw him out of the house। मतलब क्या है हिंदी में, क्या बोलेंगे इसको? राघव हैड नॉट टेकन बाथ फॉर 5 days when his mother threw him out of the house। जब उसकी माँ ने उसको फेंका, उससे पहले 7 दिन तक उसने 5 दिन तक, 5 दिन तो बदबू मार रहा था बंदा, तो बाहर निकाल दिया मामा ने। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे आके सर सोच के ये अजीब सा लग रहा है। 2 दिन से ज्यादा तो मेरे ख्याल से कमरा महकने लगता होगा। फिर मामा बोलते अब निकल, अब तो निकल जल्दी बाथरूम में पहुंच। नहीं होगा फिर मम्मा ने। सर अगर एक दिन नहाओ नहीं तो सर मेरे को चैन नहीं मिलता। सर एकदम अनकंफर्टेबल फील होता है। नहाने के बाद चैन मिलता कहाँ है? तो हमेशा बिना नहाए रखता है। नहीं एक मिनट यार, ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखो बाकी लोग मजा नहीं लेंगे, बाकी मस्ती मैं कर रहा हूँ इधर बैठ के। मुझे बताओ जब नहा लेते हो तो चैन मिलता कहाँ से कलेक्ट करते हो? चैन कलेक्ट कहाँ से करते हो? सर एकदम अनकंफर्टेबल फील होता है सर बिना नहाए। सर कैसे गुजार लेते पता नहीं। सर दूसरी चेन की बात कर रहे हैं। चैन ओके, इसका चैन खो गया भाई। लेने के लिए ही नहाता है। अभी तो तुम 7th क्लास वाले हो, अभी से तुम्हारा चैन कहाँ खो गया? गाना है। ओके सर वो गाना। गाइस 1 मिनट होल्ड करो प्लीज। मैं क्या फ्यूचर भी खत्म कर देता हूँ, बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा। ओके सर, अभी है फ्यूचर थोड़ा सा ट्रिकी है, फ्यूचर के लिए पूरा बोर्ड साफ कर देता हूँ एक बार। ओ भाई सर आप इलेक्ट्रिक ले लो, वो भी ले रहा हूँ भाई, ले रहा हूँ। उसकी रिसर्च चल रही है, मैंने मन बना लिया अपना, और मैं बना लेता हूँ, वो काम करके रहता हूँ मैं। पर रिसर्च करनी पड़ेगी ना। मैंने कल भी एक बात की थी अपने फ्रेंड से, कह रहा भाई रिसर्च करके लेना अच्छे से। सर क्या इलेक्ट्रिक, क्योंकि वो काफी महंगा है। दिस इज अराउंड 1.5 लाख और समथिंग। सर उसमें क्या इलेक्ट्रिक लोगे? कलर चेंज कर सकते हो, और कलर यहाँ चेंज पे बहुत इंक कुछ हो लानी जाता है पड़ती है पेन के लिए। कितना YouTube से इंफॉर्मेशन झाड़ रही है।
झाड़ो मत, नहीं तो खत्म हो जाएगा भाई। चलो ये सारा इधर ही झाड़ दोगे तो खत्म हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। ऑल राइट, फ्यूचर टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सीरियस हो जाओ। फ्यूचर एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि देखो, पहले देखो सिंपल, फ्यूचर सिंपल, अगेन एक्शन और हैबिट, ओके। स्ट्रक्चर क्या है देखो, स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। अब तुम ध्यान रखना, शैल जो यूज होता है वो आई के साथ और वी के साथ होता है, और विल होता है बाकी सबके साथ, अदर्स। लेकिन जब कोई बात हम इमोशन के साथ बोलते हैं तो ये रिवर्स हो जाते हैं। क्या होगा मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी, रिवर्स। ओके, असल प्लस वर्ब, नॉर्मल वर्ब V1। एग्जांपल, यू विल cry when I am finished with you, or you will cry when you see your marks, okay, whatever, you will cry tomorrow, whatever, कुछ भी, tomorrow, ये हो गया इसका। दूसरा है स्टेट वाला, अगेन इसका क्या होता है, एस प्लस शैल और विल, साथ में एक वर्ड लग जाता है बी प्लस एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, शी विल बी सॉरी टुमारो। ये अच्छा, अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बहुत सिंपल है, देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, हर जगह देखना सिंपल का स्टेट और कॉन्टिन्यूअस एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस एक फर्क होता है, वहां एडजेक्टिव आता है, यहाँ पे वर्ब आईएनजी लगता है। सो आई शैल बी स्कीइंग इन स्विट्जरलैंड। सर स्कीइंग क्या होता है? स्कीइंग नहीं पता तुम्हें? स्कीइंग, स्कीइंग बर्फ के ऊपर वो लंबे लंबे पैर लगा के ड्र करके नहीं चलते पता। हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, सर एक और एग्जांपल भी तो है। नहीं नहीं, एक और की जरूरत नहीं अभी, मैं अभी तो खत्म करा के फिर दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा, तब लूंगा तुमसे एग्जांपल, तब मैं तुमसे पूछूंगा एग्जांपल, सारों के एग्जांपल पूछूंगा अभी। ऑलराइट, परफेक्ट। दोस्तों इसका ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करेगा तुम्हें। सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव, हैज नहीं आता इसके अंदर, सिर्फ शैल, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव, ओके सर, एंड V3। एग्जांपल, you will have murdered the landlord। तुम बोलोगे सर ये क्या है, फ्यूचर में बात हो रही है, फ्यूचर में बात हो रही है और मर्डर्ड आ रहा है, यानी कि पास्ट जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा कैसे होता है? देखो, जिसमें तुम्हें स्टोरी बना रहा हूं, सुन, ऐसा करेंगे भाई, अपन जो है उधर जाके अटैक करेंगे, पूरा वो घर को लूटने का है भी, तो अपन जाएंगे, अटैक करेंगे, तो हम लोग जब आएंगे ना तब तक तू लैंडलॉर्ड को मर्डर कर चुका होगा, कर चुका होगा। तो क्या कैसे स्टोरी बनेगी, बाय द टाइम वी अराइव यू विल हैव मर्डर्ड द लैंडलॉर्ड। ठीक है, ऐसे बनते हैं असिस्टेंट। और बताता हूं, अभी पहले स्ट्रक्चर सीख लो, बेसिक स्ट्रक्चर, एंड देन एक और एग्जांपल दे दूं, एक और एग्जांपल दे दूं, देखो कहां गई मदिहा, हाँ, मदिहा will have finished of ice cream of her
brothers share also. वो अपने भाई का ही खाना खाती रहती है। हाँ, वो अपने भाई का खाना खाते रहते हैं, बहुत तेज, बहुत शरारत भी करता है। क्योंकि तुम्हें मदीहा will have finished. Now the basic sentence देख लो, subject will have NV3. Okay, now next is perfect continuous. Perfect continuous बाकी की तरह ही है। अब मैं सेंटेंस बोलूंगा हिंदी में, तुम लोग इंग्लिश में, पता है टाइम कम है अभी तो। will और shall यूज होता है ना? देखो, shall, s plus shall, will, have, बाकी सब कुछ सेम है। बीन आता है प्लस VING प्लस for एंड since, वो तो सेम रहेगा। तो he will have been walking for 20 days. Subject will have been, VING. With this we come to the end of the tenses. Yes sir. ठीक है, नाउ आई वांट टू गिव यू सम सेंटेंस, लेट मी सी गाइस, बहुत कम टाइम है मेरे पास, मैं 2-3 ही सेंटेंस दूंगा, तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये क्या बोलते हैं अपना, क्या सेंटेंस बनेगा, ठीक है। ओके सर। सर अनुभव पहला सेंटेंस आ रहा है, पहला सेंटेंस आ रहा है। ओके, पहला सेंटेंस आ रहा है, सर अनुभव को पहला सेंटेंस आ रहा है। ओके 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 ओके, मैंने खाना खा लिया होगा। मैंने खाना खा लिया होगा। सर डन भेजना। हाँ, डन भेजना है। डन। अरे हाँ, सेंटेंस जो आपने बनाना है, मैंने खाना खा लिया होगा, सेंटेंस आपने बनाना है। ठीक है। ओके, अभी काफी हिंदी हो गई, अभी इंग्लिश चाहिए मेरे को। डी कर दो सब लोग। 1 मिनट सर। अरे डी करना था श्रेयस मनोज। सॉरी सर, गलती से आंसर दब गया सर। सर सेंटेंस रिपीट करेगा प्लीज। सेंटेंस रिपीट क्या है, यहाँ टाइप हो गया है। सर बता दो ना। अच्छा, मैंने खाना खा लिया होगा। सर मैं लिख रही हूँ। हाँ, आप अभी ओपन मत करना। क्या तुम तो लेट लतीफी है तुम। ओके गाइस, बी रेडी, ऑल राइट। मेरे पास टाइम नहीं है क्लास खत्म करने की। सर ओपन कर दो। ओपन गो। सर क्या मैंने अपना खाना खा लिया होगा। कल प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, खूब अच्छे से करेंगे। सर मैं एंटर दबाई जा रही हूँ, वो देखा मेरा कर्सर ही वहां नहीं है। ओके, सॉल्यूशन व्हाट इज राइट सॉल्यूशन? सी, I shall have eaten my food. I shall have eaten my food. हाँ, I shall have eaten my food माधवी। श्रेयांश ने सर द लिख दिया सर। सर अगर आप बोल रहे हो तो आपका माइक म्यूट। अरे सर भेज रहे हैं। अच्छा, सर भाई लिखा होगा। सर ने बाय लिखा होगा। ओके चलो। अब सर मैंने आपकी वो वाली भी भेजी थी। इसमें आप बोलते ना से देख बेटा।